everyone, welcome to 12 Minutes to CLAT. This is Ankush Sharma. I would be taking care of your quantitative technique section, the most feared section of all in your CLAT examination. I think most of you are very much afraid of this section, and that is the problem which we are going to address in today's session. Plus, once you get out of your phobia, how to start preparation, what is going to be your steps one by one in order to ace this section. So we are going to discuss this thing in detail in this session. Okay, so let's start off with the first thing, that is, do we really need to do this section? Why sir? Why this question is coming for this section? Because majority of the student think like that, sir ये तो सिर्फ 10% का ही आ रहा है, 120 में से 12 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, क्या इसको स्किप कर सकते हैं? वैसे ही हमें बचपन से पसंद नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं इस सेक्शन को। तो बिल्कुल बेटा आप स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद में, फॉर एग्जांपल कट ऑफ अगर आपके ड्रीम कॉलेज की 92 है एंड 90 तक आप पहुंच जाओगे, हो सकता है 2 नंबर की वजह से आप थर्ड कॉलेज पे पहुंच जाओ, इतना डिफरेंस क्रिएट होता है एक पॉइंट के बाद में। इनिशियली आप मार्क्स गेन कर लोगे, रीजन फॉर दिस इज solving easy question from any section is going to be easy for you, and solving difficult question from any section is going to be difficult for you, whether you like that section, whether you hate that section, whether you love that section, whatever be the thing. So if you love 3 sections, for example you are loving GK, you are loving English, you are loving CR section, so in those sections you should be solving all the easy question plus all the medium level questions also. Again, you need not to solve the traps. Traps means the difficult ones. Difficult ones को वहाँ भी avoid ही करना है, right? At the same time, the sections which you are fearing, for example, if you don't like quant, there may be some students who love quant also, but for all those who don't like quant, at least you have to attempt all the easy questions. Although you are not attempting the medium ones, it's okay, but at least you are not missing on any easy question. Reason, once again I am saying, solving easy question is going to be easier for all of the student for all the sections, right? तो करना तो पड़ेगा, 10% वेटेज हो, 5% वेटेज हो, डजंट मैटर, करना तो पड़ेगा अगर एग्जाम में आ रहा है तो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इट इज नॉट अ यूनिवर्सिटी एग्जाम, इट इज नॉट अ स्कूल एग्जाम। इस सबके 95% आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, 94 भी आ गए चल जाएगा, नहीं, यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। इफ यू आर नॉट इनटू दैट कॉलेज, somebody else is getting your seat, so we need to understand कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, we can't miss this section। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा। तो सर सबसे बड़ी मुसीबत मोस्ट स्टूडेंट गेट इज फियर और द फोबिया। सो मेजॉरिटी ऑफ अस आर हैविंग द फियर ऑफ मैथ्स इन आवर स्कूल डेज। फिर लगता है यार मैथ्स से बच के तो हमने क्लैट के बारे में सोचा था, क्लैट में भी मैथ्स ही आ गई घूम फिर के, तो कैसे इससे डील करना है? देखो समझो इस बात को, आप लोगों को मैथ्स क्यों नहीं पसंद है? Why you student don't like maths? Majority of you, not all, obviously some of you must be loving the math section just like me. So basically maths requires sequence. You cannot start off with the HCF if you are not good with the factors and multiples. आपको पता ही नहीं फैक्टर क्या होते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहां से निकालोगे? तो क्या हुआ, किसी एक क्लास में अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड चीजें आएंगी, और फिर जब पिछली क्लास में हमने अच्छे से नहीं किया तो इस क्लास में कहां से कर पाएंगे? सो दैट इज द रीजन कि आपको मैथ्स धीरे धीरे बेकार लगनी शुरू हो जाती है एंड यू स्टार्ट हेटिंग दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये समझना है, बिल्कुल हो सकता है वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। Plus, maths or the quant section is going to be the easiest section of all the 5 sections and the most scoring also. Accuracy is also very very high in this section. So we need to understand यार skip तो नहीं करना है, right? Skip नहीं करना है और फोबिया से बाहर आना है कि कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस फॉलो करना है। सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस मींस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन वी कैन नॉट सॉल्व विदाउट डूइंग परसेंटेजेस। परसेंटेज में अच्छे हुए नहीं है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कहां से सॉल्व होंगे? डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, केसलेट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम। टू सॉल्व दोस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन यू हैव टू बी गुड विद द बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर जिसके ऊपर भी पैसेज आया। फॉर एग्जांपल पैसेज इज बेस्ड ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक ही क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो कैसे करेंगे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व? इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस ना। तो सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलेंगे तो ये सेक्शन आपका फ्रेंड बन जाएगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वी विल फॉलो द सीक्वेंस एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू एज दिस सेक्शन। अब हम समझते हैं कैसे करेंगे। सर सारी बात समझ में आ गई, ठीक है, पर हाउ टू स्टार्ट दैट? कौन से वो सीक्वेंस है जिसको फॉलो करना है, क्या ऑर्डर होना चाहिए, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है? सो कंप्लीट गाइड, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। सो फर्स्ट थिंग, you can take out your pen and write down the notes also if you want. First thing which is very very important here is going to be the
Calculation. So calculation is the backbone of this subject. Why? Because most of the time you are able to get to the set, you are able to make the tables, you are able to solve the question, but at the end of the day you are taking a lot of time. तो ये हमको बहुत बाद में रियलाइज होता है यार हम तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इतने टाइम लेके इक्वल सॉल्व करने का तो कोई फायदा ही नहीं, बिकॉज 120 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स, मतलब टाइम भी आप समझ रहे हो ना, टाइम भी तो हमारे पास में लिमिटेड है, और अगर टाइम लिमिटेड है तो हम क्वांट सेक्शन को करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, और डे 1 से हमको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए? टेबल्स लर्न करने हैं फ्रॉम 1 to 30, स्क्वायर्स याद करने हैं फ्रॉम 1 to 30, क्यूब्स याद करने हैं फ्रॉम 1 to 30, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ट्राई डू इट अप टिल 1 to 30। अगर 1/30 तक कर सकते हो बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में 1/20 तक तो याद होना चाहिए। याद, फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज 16.66%, यू विल बी इन अ पोजीशन टू से सर 1/6 एंड वाइस वर्सा आल्सो। मैं पूछ रहा हूं बताओ बेटा 1/14 कितना होगा, तो आपको याद होना चाहिए, यहां से 7.14 होगा, 1/7 कितना होगा, 14.28% होगा, तो ऐसे एकदम याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सो स्क्वायर्स अप टिल 30, क्यूब्स अप टिल 20, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड योर टेबल्स। ये 3-4 चीजें जब एक बार हो जाती हैं, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग माइंड कैलकुलेशन। माइंड कैलकुलेशन कैसे करनी है? फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू 24 into 3, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो 24 कैन बी स्प्लिट इनटू 20 plus 4, तो 20 into 3 is 60 and 4 into 3 is 12, तो 60 plus 12 becomes 72. For example, you are doing 47 into 5, but you don't know the table of 47 or don't need to multiply that. तो split 47 into 40 plus 7, right? Or 50 minus 3 also you can do it if you are comfortable with the subtraction order. तो कैसे भी कर सकते हो। तो if you are doing 40 plus 7 and you are doing 47 into 5, तो 45 से कर लेंगे, 4 5 are 20, 200, 7 5 are 35, तो it become 35. It is as simple as that. क्या करना है अपने को? स्प्लिट कर करके माइंड में कैलकुलेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, घूम रहे हो, यहाँ जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्लास में बैठे बैठे बोर हो रहे हो, क्या करना है? अपने माइंड को ट्रेन करना है फॉर द माइंड कैलकुलेशन। एक बार कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गई तो समझो आधा काम खत्म हो चुका है अपना, हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन, राइट? नेक्स्ट थिंग which is very important is the basic understanding of all the topic. डायरेक्टली हम जंप नहीं करेंगे केसलेट पे जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो स्टार्ट डूइंग द टॉपिक इन द ऑर्डर इन विच आई एम मेंशनिंग राइट नाउ, ठीक है? जो भी मैं ऑर्डर बता रहा हूं उसी ऑर्डर में उन टॉपिक्स के बेसिक स्टेप करने हैं, ओनली बेसिक, नो नीड टू सॉल्व वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दोस टॉपिक। आप कोई सी बुक उठा लाते हो, उसमें पता नहीं कहां से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो, जरूरत नहीं है। सिर्फ ओनली एंड ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। कौन से है वो टॉपिक, क्या है वो सीक्वेंस, लेट्स डिस्कस। तो कैलकुलेशन इज डन, नाउ यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्वांट, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज फॉलोड बाय प्रॉफिट लॉस, फॉलोड बाय simple interest, compound interest, then your ratio, then your mixture and alligation, averages, TSD, time speed distance, time and work, geometry mensuration, then numbers, then PNC, permutation combination probability, then miscellaneous topics कुछ कुछ होते हैं वो हमें करने हैं। अब बस, but not in one go. Once you are done with percentage, profit loss, simple interest, compound interest, ratio, mixture and average, now after these 5-6 topics you can split your studies into 2 parts. 2 parts means in one part we will be doing the basics of time, speed, distance, time and work, geometry, mensuration. At the same time, simultaneously, what we are doing alternatively, we are practicing caselets, we are practicing graph based question, bar graph, pie chart, line graph, tables, केसलेट बेस्ड क्वेश्चन। तो अब हमें जब हमारा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, 5-6 टॉपिक हो गए शुरू के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज एंड ऑल, फिर पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, पूरे वीक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जा रहे हैं बच्चों के टॉपिक की, प्लस एक पार्ट में हम प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं। वंस वी आर डन विद ऑल द बेसिक्स, या जो हमारे 5-6 टॉपिक्स है, प्लस हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट डूइंग सम मॉक्स आल्सो वीक में। इजी इनिशियली वी कैन डू 15 डेज में 1 मॉक, परफेक्टली ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। धीरे धीरे करके बाद में वी कैन डू 20 डेज में 1 मॉक आल्सो, 1 मंथ में 1 मॉक आल्सो। बट once all the basics are done, then we can start doing mocks every 7 days, 10 days, और जैसे जैसे एग्जाम पास होता जाएगा 3 months before, we'll be doing every week 1 or 2 mocks. So that's how we will be going in our preparation. Why to give mocks and the sectional test in between even before completing the syllabus, sir? ये भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है। Because एक बात समझो मेरी,
मैं किसी रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे पास ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, मैंने एक रास्ता पकड़ा, I have just taken a path and I am walking on that particular path to reach to my whatever be the destination and all. But for example, let's say I walk on that path for next 6 months. After 6 months, I realize, yeah, I was on the wrong path. What will happen then? Then I have to come back. So 6 months वापस आना पड़ेगा and then we have to find out the new path. That is going to take a lot of time and that will ruin your year. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि यार हम जिस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं पता भी तो होना चाहिए क्या वो डायरेक्शन सही है या नहीं है, क्या मेरी पढ़ाई सही हो रही है नहीं हो रही है, क्या सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जब तक हमें नहीं पता लगेगा, जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है। प्लस अगर हमें इनिशियली पता लग जाएगा कि यार ये गड़बड़ हो रही है पढ़ने में, फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है क्वांट में बच्चों को लगता है बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कैसे भी, कितना भी टाइम लगे बस सॉल्व हो जाए, बट जब वो मॉक्स करने जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्विंग इन द गिवन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही अगर आप साइमल्टेनियसली कुछ मॉक्स दे रहे होंगे, मे बी इनिशियली आप 15 डेज में, 20 डेज में, 25 डेज में मॉक दे रहे होंगे, तो आपको ये रियलाइजेशन होगी कि हाँ यार क्वेश्चन सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट है, तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे केसलेट्स की बेसिक्स करने के बाद में, तो आप टाइम बाउंड मैनर में करोगे कि यार 7-8 मिनट्स में आई हैव टू आंसर द केसलेट बाय हुक और बाय क्रूक। उसके बाद एनालाइज करूंगा पूरा टाइम में कि मैं क्यों नहीं कर पाया, बट 7 to 8 मिनट में जो भी समझ आ रहा है आंसर करके आगे बढ़ना है। तो इसीलिए प्लस और कोई तैयारी में गलती हो रही है तो आपको समझ में आएगा मॉक से, मॉक में यार गड़बड़ हो जा रही है, मॉक में मार्क्स ही नहीं आ रहे इस सेक्शन में और ये सेक्शन तो मेरा बेस्ट है, तो आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी सही नहीं है, तो आप उसी टाइम पे अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे एंड यू विल गेट इनटू द राइट डायरेक्शन। सो मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शनल टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे एंड प्लीज अंडरस्टैंड यू कांट स्किप दिस सेक्शन। स्किप तो नहीं करना है, तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, डरना नहीं है, सीक्वेंस फॉलो करोगे, सबसे इजी सेक्शन है, सबसे कम सिलेबस है, ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन। स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स और wherever you want to join, बट हाँ पढ़ाई शुरू करनी है यार, ये सब्जेक्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। At any cost we can't afford to skip it, right? So all the very very best, and if you have any question, any query regarding anything, do post it in the comment section of this video. Me or someone from the team will definitely reply to it. All the very best to all of you. Thank you so much.